Hello everyone, welcome to CNA, the daily newspaper analysis. So today we are back with the following list of topics to discuss. So let's start. The first is about the Uniform Civil Code. So now, recently, this thing was in news because the Law Minister of India, Kiran Rijiju, who belongs to Arunachal, he said that states are empowered to enact personal laws that decide issues such as succession, marriages, and divorce in their endeavor to secure a uniform civil code. तो why did this law minister say? So यहाँ पे क्यों बोले यहाँ पे? So यहाँ पे this uniform civil code is a matter of concern today because the central government directly wants to bring on this uniform civil code, which is the formulation of one law for the country. Okay, and which would be applicable to all religious communities in matters such as marriage, divorce, inheritance, and adoption. Okay, तो ये N3-5 ऑफ द लिस्ट 3 कंकरेंट लिस्ट ऑफ 7 शेड्यूल, तो यहाँ पे ये स्टेट्स को भी एम्पावर करते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अपने हिसाब से लगाने के. ठीक है. So what is this basically, this uniform civil code? See, the UCC is one that would provide for one personal civil law for the entire country, and thereby it would make everyone equal under the eyes of law. So आज अगर मैं चला जाऊं आर्टिकल 44 में, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में, वहां पे क्या लिखा गया है? वहां पे लिखा गया है कि द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोवाइड फॉर सिटीजंस अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटोरी ऑफ इंडिया. इसके अलावा आर्टिकल 37 के द्वारा बोला गया है कि द स्टेट शैल एंडेवर बाय सुटेबल लेजिस्लेशन, व्हाइल द फ्रेज बाय सुटेबल लेजिस्लेशन इज एब्सेंट इन आर्टिकल 44. तो आज यहाँ पे कंटेस्ट क्या चीज का है? यूसीसी वर्सेस राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. क्योंकि आज यूसीसी बोलते हैं कि यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, लेकिन आर्टिकल 25 में बोला गया है इट लेज डाउन एन इंडिविजुअल्स फंडामेंटल राइट टू रिलीजन. उसके ऊपर आर्टिकल 26B which upholds the right of each religious denominations or any sections to manage its own affairs in matters of religion. Also, Article 29 says about the definition and the right to conserve distinctive culture of a respective religion. तो ये जो 25, 26B और 29 है, इसमें थोड़ा बहुत कंटेस्ट होता रहता है आर्टिकल 44 के साथ. ओके, बिकॉज थ्रू दिस यूसीसी जो एक फ्रीडम ऑफ रिलीजन हम लोग के पास है अभी, वो यहाँ पे खत्म होने के तादाद पे रहता है. ठीक है. सो देयरफॉर एनेक्टिंग एंड एनफोर्सिंग यूसीसी इज अ ग्रेटर चैलेंज टुडे फेस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन दिस कंट्री. Okay, so therefore today we could see that this UCC, though would provide equal status to all citizens, also it would provide gender parity in the Indian society, and with this gender parity, it would accommodate the aspiration of the young population who imbibe some of the liberal ideology. जैसे मान लो मुस्लिम और हिंदू के बीच में शादी, ये पहले एकदम टोटली, मतलब आजकल के सोसाइटी में भी ये सिंस यूसीसी नहीं है तो ये हम लोग इतना नहीं देखते हैं. देखते भी है तो इसको हम लोग हेट के तरीके से देखते हैं. ओके, इसको हम लोग कुछ एक लव वार के तरीके से देखते हैं. तो अगर हम लोग यूसीसी लगा दे तो फ्यूचर जनरेशंस कुड इम्बाइब द एस्पिरेशंस ऑफ अ लिबरल आइडियोलॉजी. ऑल्सो दिस वुड इम्प्लीमेंट द सपोर्ट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन. लेकिन आज इसमें बहुत सारे हर्डल्स हैं, बिकॉज आज जो प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज है बिटवीन रिलीजियस एंड कल्चरल डाइवर्सिटी, ये एक्सेप्ट करने के लिए लोग तत्पर नहीं है. ऑल्सो लोग सोचते हैं कि ये एनक्रोचमेंट है किसके? एक रिलीजियस फ्रीडम में. Okay, and therefore this argument is not right. It's not the correct time to argue about UCC because the time is not ripe for the Indian society to embrace such UCC. So therefore it should be the duty of the religious intelligentsia to educate the community about its rights and obligation, and that should be based on moral liberal interpretations. Also, a good environment for the UCC must be prepared by the government by explaining the contents and significance of Article 44. Social reforms are not overnight, but it's a gradual phenomenon. आज हम लोग को करना है तो ये आज ही हम लोग नहीं कर सकते, इसके लिए टाइम लगता है. So though they are often vulnerable to media, फेक न्यूज, डिस्क्रिमिनेशन, लेकिन एक टाइम में धीरे धीरे स्टेप्स प्रोसेस करके ये आज मान लो आज एक बात बोले, कल दूसरे बात बोले, तीसरे बात बोले, ऐसे करते करते हम लोग एक दिन यूसीसी को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे.
क्योंकि लोगों के बीच में जागरूकता बढ़ेगा, और जब जागरूकता बढ़ता है तब धीरे धीरे एक चीज को लोग एक्सेप्ट करने लगते हैं. So therefore, social harmony and the cultural fabric of our nation must be at priority. जब ये नष्ट होने वाला है, जब ये उस तादाद पे है, तब हम उस चीज को उसको आउटलॉ कर देना चाहिए, अगर इसमें टोटली द कल्चरल फैब्रिक इज डिस्ट्रॉइड. तो उसी के बेसिस पे यहाँ पे बयान दिया गया है अपना लॉ मिनिस्टर के द्वारा. तो देखते हैं इन कमिंग टाइम पीरियड हाउ दिस बीजेपी रूल स्टेट्स will have to act as an association with the UCC. क्योंकि एक दो स्टेट तीन स्टेट से ही हम लोग पूरे स्टेट्स में, पूरे कंट्रीज में ये यूसीसी लगा सकते हैं. ठीक है, तो उसी के बारे में यहाँ पे बोला गया है. चलो नेक्स्ट पे आते हैं. ईरान रिमूव्ड फ्रॉम यूएन राइट्स बॉडी. तो ईरान को यूएन वीमेन राइट्स बॉडी से आफ्टर लाइक यूएसए ने कैंपेनिंग करके ईरान को यहां से हटा दिया गया है. ठीक है, तो व्हाट इज दिस, इंडिया ने एब्सटेन किया है ऑब्वियसली ये वोट. व्हाट इज दिस यूएन ह्यूमन राइट्स? तो इट्स अ विंग ऑफ द यूनाइटेड नेशंस दैट एंगेजेस इन द फील्ड ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट एंड आल्सो जेंडर इक्वालिटी. So this entity was formed to accelerate the progress of achieving the needs of women and girls all over the world. So therefore, UN Women works on four strategic priorities. What are these priorities? यहाँ पे पहला प्रायोरिटी है गवर्नेंस सिस्टम फैसिलिटेट women to lead, participate in and actually benefit them. Women have economic autonomy, income security and decent work. Women and girls are not affected by any forms of violence. और यहाँ पे women and girls contribute to have a greater influence in building sustainable peace and resilient humanitarian action. तो उसी के बेसिस पे यूएन वुमेन वर्क्स टू प्लेस जेंडर इक्वालिटी एज अ फंडामेंटल आइडिया टू इवन द एसडीजी. So the governing body of UN Women in its executive board, which governs the operational activities and provides operational policy guidelines to the UN Women. तो आज इसका जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है UN Women का, she is Mrs. Phumzile Mlambo Kuka. So she is based upon this headquartered of UN which is at New York. ठीक है, तो उसी के बेसिस पे आज यहाँ पे जो वुमेन्स के बारे में बोलते हैं. Okay, so a simple majority with 29 members voting in favor led to adopting the move by the commission. तो यहाँ पे यूएस के द्वारा जो एक ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाया जा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ द रीसेंट डेथ ऑफ महसा अमीनी फॉर द हिजाब प्रोटेस्ट. ओके, तो यहाँ पे ईरान ने अपना जो मॉरल पुलिस है उसको तो हटा दिया है, लेकिन फिर भी यहाँ पे यूएस के द्वारा यूएन में एक एक्शन लिया गया है. ओके, सो दैट इज बेसिकली अ स्मॉल न्यूज इन एसोसिएशन विद दिस ईरान. ओके, तो नेक्स्ट पे आते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट. तो यहाँ पे कितना सक्सेस हुआ है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट? तो हम लोग जानते हैं व्हाट इज दिस आरटीआई. सो द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट गेन पावर व्हेन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वाज अडॉप्टेड इन 1948, providing everyone the right to seek, receive information and ideas through any media regardless of frontiers. Okay, so today if I see about the RTI, that is the RTI in relation to the country of India. So the government introduced this bill in around 2005, okay, which directly says about the independency of the people associated in collecting information. क्योंकि इस एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव ही क्या है? Empowering citizens to promote transparency and accountability, and also by knowing about the whereabouts we could contain the corruption and enhancing the people's participation in the democratic process. और ये आरटीआई लाया क्यों गया था? Because of corruption and scandals, international pressure and activism, modernization of the information society. तो उसी के बेसिस पे ये लाया गया था. ठीक है, so right to information is basically one of the important bureaucracy system, so that we could know about the process, how a government functions, how a system functions. तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत देखते हैं. लेकिन आज क्या हो रहा है? Today we could see that because of the government's much more regulation towards, क्योंकि आज गवर्नमेंट क्या बोल देते हैं, जब भी हम लोग कुछ आरटीआई करने जाते हैं तो गवर्नमेंट बोल देते हैं कि दिस कैन नॉट बी लीक बिकॉज इट इज डायरेक्टली सम ऑफ दिस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन. तो आज यहाँ पे जो हम लोग का आरटीआई सिस्टम है ये टोटली एक फेलियर है इन सम इनिशिएटिव्स. Okay, and because of this illiteracy and even some of the unawareness among the majority of the proportions, we could see that RTI could not be exercised. So the RTI's aim is not to create a grievance redressal mechanisms, but it is to give the information associated with a respective act. तो आज
जो नॉन डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में बोल रहा हूँ, सो इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत, एटॉमिक एनर्जी एक्ट के तहत, सेंट्रल सिविल सर्विस एक्ट के तहत, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत यहाँ पे गवर्नमेंट डायरेक्टली इंफॉर्मेशन पास डाउन नहीं करते हैं। ओके, सो देयरफॉर आरटीआई के एम्बिट में आज इवन पॉलिटिकल पार्टीज भी नहीं है, तो हम लोग को पॉलिटिकल पार्टीज को भी लाना पड़ेगा। ठीक है, सो देयरफॉर ऑल दिस मेजर्स आर देयर टुडे। सो आज अगर हम लोग को आरटीआई को और ज्यादा तंदुरुस्त बनाना है, so this was to make achieve social justice, transparency, and even to make accountable government. But we have seen that in the recent times the RTI is not giving some number of due importance to the citizens and their respective demands, क्योंकि right to जो information है it's basically coming under the fundamental right after this respective act. तो उसी के बेसिस पे यहाँ पे बोला गया है कि इस RTI can be seen to be the true time period over today that do this right to freedom of speech and expression जो आर्टिकल 19 के अंदर दिया गया है, तो उसको फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो उसी के बेसिस पे यहाँ पे बात बोला गया है। ठीक है, तो therefore we could see about that how RTI is performing today in our country. Okay, next आओ combine efforts to combat air pollution। तो यहाँ पे जो combine efforts है आज क्या हो रहा है, today we could see that India is among one of the countries which have got a huge number of air pollution today. Okay, so today we could see that जो एयर पोल्यूशन का एक विभाग है, ठीक है, supposedly the National Clean Energy Program, so it was launched recently by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, and it is therefore the first ever effort in the country to frame a national framework for air quality management, which seeks to cut the concentration of some of the PM10 matters, PM2.5 matters. Okay, और उसके लिए हम लोग ने एक सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का भी एक निर्माण किया था। तो therefore the plan has got to augment and evolve effective and proficient ambient air quality monitoring networks across the country. तो आज उसी के बेसिस पे हम लोग आज क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग इन फॉर द सफर। सफर का एक पोर्टल है, ओके, सो सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च। ऑल्सो वी हैव गॉट द एयर क्वालिटी इंडेक्स। ठीक है, उसके बाद हम लोग ने जो BS6 व्हीकल्स को फेज आउट किया था, पुश फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अंडर द स्कीम ऑफ फेम 2 चला रहे हैं हम लोग अभी। तो कभी कभी हम लोग ऑड इवन पॉलिसी भी लगा देते हैं, विच कैन बी सीन इन दिल्ली। ओके, ऑल्सो वी आर मॉनिटरिंग द एयर क्वालिटी थ्रू द नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम। तो उसी के बेसिस पे आज हम लोग जो मेन पोल्यूटेंट्स है, ओके, बिकॉज वी कंसिडर्स द 8 पोल्यूटेंट्स नेमली कार्बन मोनोक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, PM2.5, 10, एमोनिया एज वेल एज लीड। ठीक है, तो आज ये सबसे हम लोग को अगर बचना है, ओके, तो हम लोग को बहुत बड़ा एक कदम लेना पड़ेगा टुवर्ड्स एयर पोल्यूशन, टू कंट्रोल दिस एयर पोल्यूशन। ओके, क्योंकि कर्बिंग एयर पोल्यूशन इन इंडिया नीड्स एफर्ट अक्रॉस साउथ एशिया। तो ये वर्ल्ड बैंक का एक रिपोर्ट बोला गया है कि खाली इंडिया को ही टैकल करने से नहीं होगा, जो साउथ एशिया का कंट्रीज है, बेसिकली पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, उनको भी यहाँ पे एक कॉर्पोरेशन करना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग यहाँ पे जो एक रिडक्शन है ऑफ एयर पोल्यूशन वो कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स द थिंग। नेक्स्ट पे आते हैं स्टूडेंट सुसाइड पॉइंट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग राजस्थान का जो कोटा है, हम लोग रिसेंटली देखे हैं कि 3 स्टूडेंट्स कमिटेड सुसाइड विद इन 12 आवर्स इन राजस्थान कोटा, व्हिच इज रिगार्डेड एज एजुकेशन एंड कोचिंग हब फॉर इंडिया, नोइंग फॉर प्रोड्यूसिंग IITians, डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स। ओके, तो आज कोटा में बहुत सारा एक इंसिडेंट होता रहता है हर दिन। तो हम देख सकते हैं कि महाराष्ट्र में कितना है, मध्य प्रदेश में कितना है, तमिलनाडु, कर्नाटका, उड़ीसा, तो लोग कितना सुसाइड करते रहते हैं। ठीक है, so even recently even the Lancet report has published a broad and comprehensive policy paper offering a range of evidence based solution across sectors of suicides in our country। तो आज जो सुसाइड रेट है ये इंडियंस में, गर्ल्स के और वुमेन्स में ज्यादा है, ओके, एज कंपेयर टू द ग्लोबल रेट। So even the youngsters, basically of the group from 15 to 39 age groups, are more affected towards suicide. And the most common way of going for suicide is directly the hanging, followed by pesticides, उसके बाद poisoning, medicine overdose and self immolation। ठीक है, so ये किस लिए हो रहा है, because of depression, okay, because of some of the social and cultural factors, because of the pressure, because of some of the disorders। तो ये यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, so India reports the highest number of suicide deaths in the world, okay, and India labors on with the formulation of its national suicide prevention strategy, which is in preparation for some years now, लेकिन आज तक हम लोग ने ये नहीं देखा है।
So therefore, suicide is when people harm themselves with a goal of ending their life and they die as a result. तो इसका बहुत सारा ट्रीटमेंट्स भी है, थेरापीज भी है, brief interventions, okay, follow up phone calls, okay, also we have to go around psychotherapies, cognitive behavioral therapy, dialectical behavioral therapy. So आज इसका जो लीगल स्टेटस है सुसाइड इंडिया में, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं सेक्शन 309. Okay, then we could see about the status of section 309, which has been considered among like this mental health care act, that is 2017. ओके, सो आज यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारा एक इनिशिएटिव्स भी लाया गया है. सपोजली दिस नेशनल मेंटल हेल्थ केयर प्रोग्राम ऑफ 1982, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट ऑफ 2017, that is basically going with the WHO guidelines. Also, the Rights of Persons with Disabilities Act 2017 also empowers to seek an enhancement about their respective rights who are facing some of the mental illness. फिर मनोदर्पण इनिशिएटिव, which is an initiative under Atmanirbhar Bharat Abhiyan, aims to provide psychosocial support to students for their mental health and well-being. Then Kiran Helpline. So this helpline is a giant steps towards suicide prevention and can help with support and crisis management. तो आज ये डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के अंदर ये एम करते हैं कि कैसे लोगों को फिजिकल सपोर्ट, साइकोलॉजिकल सपोर्ट दूं, कैसे अर्ली स्क्रीनिंग किया जाए, कैसे उनको मैनेज किया जाए. Also, we could see about the gatekeeper model, that there are the existing people who are in close contact with the prisoners and can provide help for even the prisoners who need some of the psychological help. तो आज यहाँ पे हम लोग का इवन ये है, बडी सिस्टम है एक. So the concept of body system, social support through trained people who are buddies or listeners who have to found a good impact on the well-being of the suicidal person. तो ठीक है, तो उनके साथ अगर थोड़ा बहुत बातचीत होता रहे तो वो फॉस्टर सपोर्ट करते हैं और उस फॉस्टर सपोर्ट से हम लोग सुसाइड को प्रिवेंट कर सकते हैं. इसके बाद जो ई मुलाकात है, मुलाकात मतलब virtually if you directly talk with the person who is having some of the tendency of suicides, तो उसी के बेसिस पे हम लोग थोड़ा बहुत यहाँ पे उनको बचा सकते हैं. ठीक है, so therefore today we could see that the reconciliation of this attempt of suicides needs some of the dedicated interventions directly from the government as well as from the society. Okay, so even अगर हम लोग को थोड़ा बहुत आगे बढ़ना है तो हम लोग को ये सुसाइड रेट्स कमाना पड़ेगा, बिकॉज आज इंडिया में जितना सुसाइड हो रहा है वो कहीं और नहीं हो रहे हैं, एंड दैट इज द पीरियड within 15 to 39 years of age. बहुत ज्यादा हो रहा है. So therefore it is very much essential to launch such number of program in a strategy based so that it could serve nationwide health interventions in the country as well as through some of the people, because आज यहाँ पे जो 5 action steps for helping someone in emotional pain, उसको 5 steps क्या है, तुम लोग यहाँ के थ्रू से ही हम लोग को क्या करना पड़ेगा, we have to go for tackling such number of cases, क्योंकि आज देख रहे हो कि कितना परसेंटेज हम लोग का बढ़ा जा रहा है. ठीक है, सो टुडे वी कुड सी 2021 में 56.51, देन अराउंड 43.49%. ओके, तो यहाँ पे सुसाइड दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है. सो सी अबाउट द कंडीशंस फ्रॉम द अर्लियर टाइम्स. ठीक है, सो इसीलिए हम लोग को यहाँ पे अगर हम लोग को टैकल करना है, देन वी नीड्स टू हैव सम ऑफ द 5 एक्शन स्टेप्स फॉर हेल्पिंग समवन इन इमोशनल पेन. कोई अगर यहाँ पे है तुम लोग के आसपास जिसका ये टेंडेंसी आ रहा है, जो डिप्रेशन में जा रहा है, जो सोचते हैं कि उनका मेंटल डिसऑर्डर आ रहा है कुछ, तो यहाँ पे हम लोग को 5 स्टेप्स को अपनाना पड़ेगा. सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू इवन फोकस टुवर्ड्स दिस 5 स्टेप्स. ओके, सो आस्क्ड, पहला होता है आस्क, मींस आर यू थिंकिंग अबाउट किलिंग योरसेल्फ, ये पूछो. सेकंड में क्या करना है, सेकंड में करना है कीप देम सेफ, उनको सेफ रखो. ओके, रिड्यूस एक्सेस टू लिथल आइटम्स और प्लेसेस. ओके, उसके बाद बी डेयर, लिसन केयरफुली एंड एक्नॉलेज देयर फीलिंग्स. मानो उनको फीलिंग्स को, क्या हो रहा है मानो, पूछो और पूछ के मानो, हाँ ठीक है तुम सही कर रहे हो, ओके तुम सही बोल रहे हो, तुम्हारे साथ ये गलत हुआ है. सो एक्नॉलेज देयर फीलिंग्स. हेल्प देम कनेक्ट, हेल्प देम कनेक्ट मतलब सेव द नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन लाइफलाइन नंबर, दैट इज 1-800-273-8255. ओके, सो ये नंबर सेव करो so that they could connect it with some of the psychologists who are preventing the people from going for suicides. Or lastly, stay connected. Stay connected means
follow up and stay in touch after a crisis that have happened with her or him. तो उसी के बेसिस पे हम लोग अगर ये 5 एक्शन स्टेप्स ले ले तो हम लोग को थोड़ा बहुत जो सुइसाइड रेट्स है उसको कमाने के लिए हम लोग एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे खाली गवर्नमेंट से कुछ नहीं होगा, यहाँ पे हम लोग जैसे सिटीजन्स को भी यहाँ पे एक्टिव टेक पार्ट लेना पड़ेगा ताकि हम लोग अपने बच्चे को, अपने सिटीजन्स को बचा सकते फ्रॉम दिस menace of suicides. Okay, so this is we have seen with respective to this editorial. So यहाँ पे आप लोग के लिए 5 MCQs है. Please do attempt these MCQs and do join our WhatsApp as well as Telegram channel for further updates. So that's all for today. Thank you and Jai Hind.